Assalamu alaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I am your English teacher, Miss Success. So, students, today we are going to do workbook work in this video. So, first of all, open your workbook and take out the page number 14. Have you all opened your workbook, students? Are you ready? So, students, यहाँ पर question number 1 देखिएगा. Can you rewrite the following sentences correctly? The clauses have all been put in the wrong places. So students, यहाँ पर कुछ ऐसे phrases मौजूद हैं, ऐसे clauses हैं जो wrong place पे जो है वो मौजूद हैं. आपने यहाँ पर correct करके इनको लिखना है. तो आप किस तरह लिखोगे? A man, who was thought to be a thief, was arrested yesterday driving a cow down the road, full stop. Okay students, now look at the B. When the man went into the bank, he put all his money on the table which he had kept in a tin box at home. When the man went into the bank, एक सेंटेंस हो गया यहाँ पर. He put all his money, which he had kept in a tin box at home, on the table, full stop. Babar threw a stone at the man's head which he had kept concealed in his pocket. लिखिएगा, Babar threw a stone, which he had kept concealed in his pocket, at the man's head, full stop. D. The large man ran away from the dog who was a coward. The large man, who was a coward, ran away from the dog, full stop. Now move on page number 41. He gave a biscuit to the poor boy which he had in his bag. लिखिएगा, he gave the biscuits which he had in his bag to the poor boy. The team arrived in a large yellow coach who challenged us. The team who challenged us arrived in a large yellow coach. My young brother Ken is seriously ill with influenza, who is on holiday with us. My young brother Ken, who is on holiday with us, is seriously ill with influenza. The violent attack began in the field at the back which we had long been anticipating. The final attack, which we had long have been anticipating, began in the field at the back. So students, यहाँ पर हमने जो काम किया है वो सेंटेंसेस की करेक्शन की है. रॉन्ग प्लेसेस पे कुछ क्लॉजेस मौजूद थे, उनको हमने प्लेसमेंट ऑफ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस किए हैं, यानी कि जिनका जो प्लेस था हमने उसको वहाँ पर जो है वो एडजस्ट किया है. Now move on page number 44. Okay, now students, people and professions. यहाँ पर कुछ peoples हैं, उनके professions लिखने हैं. जैसे कि यहाँ पर आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. You know what a rationalist and a skeptic are. Below there are some names we give to people because of what they do or because of what they are. Can you say what the following people do get these names? So students, यहाँ पर कुछ peoples के names हमने लिखने हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कर्जदार, साथी, आदि, हिजरत करना, तो हमें यहाँ पर लिखना है. ठीक है, यानी कि इनकी डेफिनेशंस लिखनी है. An amateur is a person who is fond of something, not an expert. यानी कि amateur मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ का शौकीन होना, लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं होना. ठीक है. An alien
इज़ अ पर्सन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, यानी कि एलियन वो होता है जो हमारी कंट्री के हमारी कंट्री में नहीं होता, वो कहीं दूसरी दुनिया से आया गया, ठीक है। एन एडिक्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक हैबिट। एडिक्ट मतलब किसी भी स्पेसिफिक हैबिट पर जो है वो डिपेंडेंट होना, उसको हम एन एडिक्ट कहते हैं। एंड अकम्प्लाइज इज़ अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर इज़ क्राइम, यानी कि जो जुर्म का पार्टनर होता है उसको वो कहते हैं। इसी तरीके से बाकी के और भी आप लोग खुद कीजिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन पेज नंबर 50. Now look at the question number 1. Working with words. Question number 1. Underline the silent letters in the following. इन वर्ड्स में जो साइलेंट लेटर्स हैं इन्हें आपने करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हुए हैं। Add the suffix full y, ish औरous the following only where possible. हमें यहाँ पर सफिक्सेस ऐड करने हैं फुल ful, y, ish और ous, हमें यहाँ पर वो फुल ऐड करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। व्हाट आर द वर्ड्स डिस्क्राइब ब्लू, तो यहाँ पर जो है वो किस तरह वर्ड्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। सुइटेड टू, इन, अकॉर्ड विद, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉम्पेटेबल। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज ऑब्जेक्ट इन स्पेस, एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि यहाँ पर डेफिनेशंस लिखनी है, आपने यहाँ पर वर्ड्स लिखना है। अबेटिंग, एंग्विश, एस्ट्रोनॉमर्स, कॉम्पिटेबल, ठीक है। कॉम्पिटेबल का मतलब होता है मुताबिक या फिर मुनासिब। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 51. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. अंडरलाइन द मैन क्लॉजेज इन द फॉलोइंग. इन सेंटेंसेज में मैन क्लॉजेज को आपने अंडरलाइन करना है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्टली. आपने इन सेंटेंसेज को करेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर साइमा इज़ हैविंग रोस्ट चिकन, यहाँ कॉमा आएगा, बट द अदर आर हैविंग वेजिटेबल करी। 3 times 2 are 6, आर को काट के इज़ लिखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करेक्शन होगी वर्ड्स की, तो आप लोग ये कर सकते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो वर्ड्स आपने सेंटेंसेस को इस ब्लैंक्स स्पेसेस को जो फिल करना है वो आपने पास्ट सिंपल से और पास्ट परफेक्ट से यूज़ करते हुए बनाना है। आप लोगों को पास्ट सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसको आपको यूज़ करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.